हाय सर, गुड इवनिंग। मेरा नाम पायल है। मैं व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट माय इंट्रोडक्शन एज, मैम? Yeah, मतलब okay. So, sir, Payal ji is from Singapore. Yeah, नहीं, वैसे born brought up बॉम्बे हैं। माय फैमिली इज okay. स्टिल इन बॉम्बे, माय इन-लॉज, एवरीबॉडी इज फ्रॉम बॉम्बे, बट या माय हस्बैंड इज वर्किंग इन सिंगापुर, सो वी आर इन सिंगापुर नाउ। बट आई एम वर्किंग एज अ ट्यूटर फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, and I've got two children. One is a boy and a girl. And what else do you want me Yeah, to? thank you, Payal ji. That's enough. Yeah. Okay, Chandresh ji. You need to unmute yourself. Yeah. Myself, Chandresh Patel. I am from Gujarat. ओके। Okay, बस ठीक है. गुजरात So, कहाँ से हैं? राजकोट से हूँ, गुजरात में राजकोट से हूँ सर। गुजरात राजकोट। ओके, Yes. ठीक है। नेक्स्ट। और okay. And रंजू जी, अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए. My name is Ranju. I am from Moga, Punjab, and I am a retired district pharmacy officer. And I have two children, one son, one. ठीक And है रंजू जी, थैंक यू. One is more मनोरमा जी. हेलो सर, गुड इवनिंग। माय नेम इज मनोरमा जी। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ सर जी। ओके ओके। जी और आप सभी लोग किसी न किसी रूप में योगा से कनेक्टेड हैं। ऑल जी ऑफ यू आर कनेक्टेड विद योगा। ओके ओके, गुड। सो नाउ we start today introductory class. Yesterday we have discussed that we have 5 bodies. We have 5 type of bodies. One is a physical body, another is etheric body, third one is emotional body, and fourth one is mental body, and fifth one is spiritual body. When we act anything, we use this 5 bodies. Why some person is success in action? Why some person are getting the result what they want, and some persons are working too much, but they don't have any result. Why? What is the difference? This is the difference. Only one. If your 5 bodies will work with your purpose, your according to your purpose, you thinking with your purpose, if you feel your purpose and you will involve with effort at time with purpose, then you will be successful. So yesterday we have discussed about how we can align our 5 bodies. So actually this is introductory class, so our time limitation not allow too much explanation in these things. When we will go in the course, then we can discuss more about it, because we will get more time. So yesterday we discussed about 5 bodies, and our system is included with 3 things: 1 bodies, 2 mind, 3 soul. So as body level we have 5 bodies, and at the mind level we have 3 type of mind. Yesterday we have discussed 3 type of mind. One type of mind is conscious mind, second type of mind is
subconscious mind, and third type of mind is superconscious mind. We yesterday we have discussed that our left brain is connected with our conscious mind. Conscious mind is a logical brain, affect our logical and analytical capacity and capability. And like that, our right brain represent subconscious mind. Subconscious mind is philosophy brain. Our right brain is our philosophy brain. So we have discussed yesterday a little bit. So some education system is connected with the conscious mind. Some education system is connected with the subconscious mind. Some education system connected with the superconscious mind. In India, we have 3 types of education system. Now, in present, we are following only the conscious mind education system. In schooling, we are practicing only the conscious mind education. So, we have lots of knowledge, we have lots of process how to do work, but less feeling, because our right brain is not working properly. That's why our right brain is not working properly. So in healing course is connected with right brain. Healing course is connected with subconscious mind. Healing course is connected with the 5 senses. So when we activate our right brain or subconscious mind, then we can sense the energy. So we have 2 types of mind. Usually we are using that first one through analysis, through logic. We understand everything. And second one, we feel anything. If we feel good, we think in another phase. If we think bad, then we feel and work in another thing. So in Hindi, if you see the Hindi, left brain knowledge is known as शिक्षा. जो लेफ्ट ब्रेन की नॉलेज है उसको हम शिक्षा कहते हैं. एंड राइट ब्रेन नॉलेज इज नोन एज विद्या. जो राइट ब्रेन से हम सीखते हैं सेंसेस के द्वारा, 5 सेंसेस के द्वारा, उसको हम विद्या कहते हैं. तो हीलिंग इज ए विद्या. हीलिंग इज गोइंग टू बी लर्न विद 5 senses. Then in healing, we will activate our 5 senses. Then we understand how to work energy. So आपको एक चीज तो मोटी मोटी समझ में आ गई होगी कि जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है. जब हम किसी चीज को फील करते हैं तो राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है. One thing you have understand, I think, that if we think and analyze, your left brain will be activated, and if you feel anything, then your right brain will be activated. तो जब हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे 5 सेंसेस भी ऑन हो जाते हैं. जब 5 सेंसेस ऑन हो जाते हैं, उसी सेंसेस के द्वारा ही हम एनर्जी को फील कर सकते हैं. यानी हम लेफ्ट ब्रेन से एनर्जी को फील नहीं कर सकते. इसीलिए जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं, ज्यादा तर्क में उलझे रहते हैं, लॉजिक में उलझे रहते हैं, वो कई बार न तो ईश्वर की शक्ति से जुड़ पाते हैं, न किसी भी प्रकार की अच्छी ऊर्जा से जुड़ पाते हैं. तो इसीलिए
वो दोनों जितने दो प्रकार की टेक्निक है, एक तो लेफ्ट ब्रेन की टेक्निक है और एक राइट ब्रेन की टेक्निक है. So we have two type, mainly two type of techniques. One is connected with left brain, and another is connected with right brain. So in left brain we practice which is not present. We try. It is like that. ऐसा कह सकते हैं, if we close your eyes and your touches anything. If in front of elephant, if you have you are standing in front of elephant and you close your eyes and you will touch. Some person will touch his tail, some person will touch his front part, some person will touch his leg. So every person will talk about in different manner. Like that in हिंदी मैं बात करता हूँ कि अगर आपके सामने एक हाथी खड़ा है और आपकी आंख पर पट्टी बांध दी जाए और आपको खड़ा कर दिया जाए पहले, और सामने हाथी हो, तो कोई पूंछ को छुएगा, कोई आगे सूंड को छुएगा, कोई पैर को छुएगा, और वो फिर उसको उसके हिसाब से वो क्या करेगा, एक्सप्लेनेशन करेगा कि ये चीज ये है, ये चीज ये है. ओके, आप फुल आंखों से उसे नहीं देख सकते. लाइक दैट, इफ यू open your eyes and you see the elephant, then you can realize it is not legs and tails, it is an elephant animal. Okay, so when we will be capable to use our right brain, you can see anything in proper manner, in full form. राइट ब्रेन में हम सेंसेस के द्वारा क्यों सीखते हैं? क्योंकि उसी के द्वारा हम किसी चीज को पूरी तरीके से देख सकते हैं, जैसे खुली आंखों से देखते हैं. सो इन लेफ्ट ब्रेन we are using the logic, techniques, trust and trials, but in right brain we using senses only. If anything is present, the sense will be feel. We will feel the any type of senses. Okay, यानी राइट ब्रेन का मतलब ये हुआ कि जैसे लेफ्ट ब्रेन में हम कोई भी चीज इमेजिन करते हैं, वो है नहीं, लेकिन हम टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं. अगर वो होगी तो दिखेगी और नहीं होगी तो नहीं दिखेगी. लेकिन राइट ब्रेन में क्या है, टेस्ट एंड ट्रायल की जरूरत नहीं है. हम जब उसको सेंस करेंगे तो वहां जो एनर्जी होगी वही दिखेगी. अगर एनर्जी नहीं है तो आपको फील नहीं करना है, तो उसमें आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं होती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू टाइप ऑफ education system. One is based on logic and another education system is based on visualization. तो जो कुछ उपस्थित है उसी को आप विजुलाइज कर सकते हैं. आपको ये सुनकर के आश्चर्य होगा, मैं आप जब कोर्स कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आप में से हो सकता है कोई भगवान राम को मानता हो, कोई कृष्ण को मानता हो, और कोई शिव को मानता हो, कोई भगवान विष्णु को मानता हो, कोई गुरु नानक जी को मानता हो, कोई गुरु गोविंद साहब को मानता हो, कोई अलग अलग परंपरा के अपने गुरुओं को भी मानते होंगे. आपको क्या लगता है वो अभी प्रेजेंट नहीं है? वो अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन वो फिजिकल बॉडी में नहीं है. लेकिन एनर्जी बॉडी एंड सोल बॉडी, ये दोनों इमॉर्टल बॉडी है. एनर्जी बॉडी क्या है? सोल का ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो सोल जो है एक लाइफ से दूसरी लाइफ में जो है एनर्जी बॉडी के साथ साथ जाती है. इसलिए जो हमारी जो जीवन की यात्रा है, वो जब से हमने जन्म लेना शुरू किया, हम लोगों ने कब से जन्म लेना शुरू किया? कुछ लोग कहेंगे हम तो 30 साल के हैं, कोई कहेगा हम 50 साल के हैं, कोई कहेगा हम
20 साल के हैं, कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि हम 60 इयर्स के हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोगों की लाइफ सर्किल जो स्टार्ट हुई है वो एक कोसी जीव से शुरू हुई. आवर लाइफ सर्किल इज स्टार्टेड विद यूनिसेलुलर लाइफ. जब सिंगल सेल के हम थे, तो सिंगल सेल का कोई उदाहरण आप बता सकते हैं? एनी एग्जांपल कैन यू गिव फॉर यूनिसेलुलर बॉडी? एनी पर्सन? Anybody? If you are protozoa, amoeba, they have the body, but they are single cell body. We have lots of cells in our body, but they have only one cell. Okay, so that's why we are calling them unicellular body, amoeba and protozoa. So when we evolve, we started our body life cycle from unicellular life. We are first in form of one cell, then two cells, then four, 16, like develop to cell, we reach in this body. So we हम डायरेक्ट मनुष्य शरीर में नहीं आए. We didn't came in a human body directly, our soul. First, our soul and our energy body is kept with unicellular body. Then he evolved. Then next life, so more cells. Then he evolved उस life में. Then another body. So ये हम लोगों को बताया गया ना 84 lakhs of body. Our rishis says 84 लाख योनियां हम लोगों को बताई गई हैं. तो ये 84 लाख योनियां क्या है? ये अलग अलग सेल्स की बॉडी है. तो ह्यूमन बॉडी तक पहुंचते पहुंचते हमारे जो है लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस आ जाते हैं. वो सारे एक्सपीरियंस रिकॉर्ड हो जाते हैं किसमें? इन एनर्जी बॉडी. आवर ऑल लाइफ एक्सपीरियंस इज रिकॉर्डेड इन एनर्जी बॉडी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी. एक लाइफ से दूसरी लाइफ में, जैसे इस लाइफ में आपको कुछ रिलेटिव्स मिल गए, फैमिली मिल गई, घर मिल गया, गाड़ी मकान दुकान आपका हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, अच्छी अच्छी ज्वेलरी हो गई. ये सब शरीर छूटने के बाद छूट जाने वाला है. नेक्स्ट लाइफ में क्या चीज जाने वाला है? ओनली वन थिंग. यू कैन ब्रिंग only one thing is this life to another life. Okay? तो इस लाइफ में से दूसरी लाइफ में सिर्फ आप जो है ओनली एनर्जी लेके जा सकते हैं. यू कैन ब्रिंग ओनली द एनर्जी. You can't bring life to life, your property, your body, your relatives, everything will be changed. इस लाइफ में जो आपके रिश्तेदार हैं, जरूरी नहीं पिछले लाइफ में रहे हों, और जो अगले लाइफ में मिलने वाले रिश्तेदार हैं हो सकता है वो दूसरे हों. ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जिस कोर्स के संबंध में हम लोग बात करने जा रहे हैं उसको, उसकी गहराई को, उसकी जो है डेप्थ को, और उसकी इंपॉर्टेंस को, और उसके रेंज को हम लोग जो है पहले समझें. जब उस चीज को हम समझेंगे तो जो है हम इस कोर्स को ज्यादा इजीली समझ पाएंगे कि हम लोग वास्तव में सीखने क्या जा रहे हैं. तो एक लाइफ से दूसरी लाइफ में जब हम एनर्जी ही लेके जा सकते हैं, तो हमारे जो ऋषि मुनि थे इन्होंने क्या किया कि जब हम एक लाइफ से दूसरी लाइफ में हम एनर्जी ही लेकर के जा सकते हैं, तो फिर
हम जो है सिर्फ एक ही काम करते हैं कि सिर्फ जो है एनर्जी पर ही काम करते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी को सिर्फ सरवाइव कराते हैं और फिजिकल बॉडी के लिए उतना रखते हैं जितना हमारी फिजिकल बॉडी सरवाइव करते रहे, यानी फिजिकल लाइफ हमारी सरवाइव करती रहे। लेकिन एक्चुअली हमारा असली काम क्या होना चाहिए? एनर्जी प्रोडक्शन। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अभी आज हम लोग जहां तक पहुंचेंगे वहां तक चर्चा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ऑरा को स्कैन करना भी सीखेंगे थोड़ा, जब हम लोग बैच में स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिकल कराऊंगा और उस प्रैक्टिकल के बाद आप कुछ सेंस करेंगे और उसके बाद मैं बात करूंगा कि ये सेंसेशन में आपने क्या चीज सेंस किया है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइए एक छोटा सा पहले प्रैक्टिकल करते हैं। Okay, let us come. We will do one a small practical. Yesterday we did practicals with eye senses. Today we will start another practical with touch senses. Okay. So actually today I was traveling in driving, so I'm here. Not we can much more space, but you can keep your hand like that. Can you keep your hand like that? And you move your hand. Okay, you move your hand and reverse. And now flick your hands. Now move your wrist and reverse. It is very simple. Okay, now you keep your palms like that. You can keep a gap 3 to 4 inches and in front of your heart. Some distance is some distance from your heart is like 1 feet, and you have to keep like that, hand you like that. Okay, now you move your hands like that and be aware between the palms and reverse. Now you keep more distance and narrow, near and far, near and far. Are you sensing anything in your between your palms? Okay. Okay. So be aware between your palms. Be aware. Are you sensing some like a spring, some magnetic? आपको कुछ अपने दोनों हथेलियों के बीच में पूरा ध्यान लगाइए और हाथ को थोड़ा सा, मतलब आपको एफर्ट नहीं करना है, ओनली हल्का सा हाथ ढीला छोड़ दीजिए, हाथ को पास लाइए, दूर लेकर के जाइए और दोनों हाथों के बीच में सेंस कीजिए. प्लीज सेंस बिटवीन योर palms. Are you sensing something? Okay, okay, good, very good. Actually, you are generating the energy and your both energy hand touches each other. That's why you are feeling like that. If you touch another body, energy body, and your energy hand will touch the another energy body, then you can sense something. Okay, in when we sense the aura, then we can understand it is very easily. So, and if you see like that, yesterday you did one practical. We saw the
a layer around the finger. Anybody can explain yesterday practicals? Anybody? What we did yesterday? Anybody? So it was Kalpana ji, aura. आप ही Yeah, explain yeah, करें. sir. So we tried to watch the aura around the fingers. Okay, so it like I don't know about everybody, but I could sense something like a shadow, a visible shadow around the fingers. Okay, but today it's very heavy. I can feel that like I have a ball and I'm pushing the ball. It's very, I can feel it. Yeah. Okay, okay. Yesterday we used eye senses, and today we used only the touch senses. Okay, okay, we used touch senses. And if you saw the on the plant also, plant and small leaves, if you see the leaf around the leaves, you will see the some shadow like around the plant. If you the person, the sun head area, so you will see the a line around the head area. So it is the eye senses. Today we used a practical like a touch senses. So it is more easy than eye senses, because if you are feeling more, what is the difference of the eligibility of this course to another course? In this course, we need not logic analysis. In this class, if you will use your left brain, your energy sensation will go out. Okay. In this course, only we have to use our feelings. When we feel anything, then our five senses will be on. Then I can easily sense the energy. When you sense the energy, जब आपने भी एनर्जी को फील किया तो आपने अनुभव किया होगा, एक बार चाहे आप फिर से प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आपने अनुभव किया होगा कि आपका माइंड चलना बंद हो गया, लॉजिक गायब हो गया. कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? ओके. इसका मतलब क्या हुआ? What do you understand? What is the meaning of this things? When at a time, in one time, only one mind will be activated. If you're thinking, your left brain will be activated and your right brain will be still. When you feel anything, then your right brain will be activated and your left brain will be still. Okay, you understand the what I want to say to you, the basics between the left brain and right brain, and the conscious mind education system and subconscious mind education system. This healing is learned by senses only, so we have to use our feeling more. Without feeling, no sensing. Without sensing, no energy feelings. You can't understand what is the actual thing. Understand? Any question about it? You understand? So, हम लोग कैसे किसी को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है? हम लोग किसी का ऑरा, when we scan the aura and we check the size of the aura, energy body size is aura size. And if your aura is bigger, then your energy level will be bigger. Then your energy body will be strong. Then you will be a strong. Okay. तो कहने का तात्पर्य है, इसका मीनिंग यह है कि जब आप
मान लीजिए हाथ से आप नापते हैं, हम अभी आपको ऑरा नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हिंट करेंगे कि ऑरा को कैसे नापते हैं, आज तो शायद नहीं होगा। तो ऑरा को जब हम नापते हैं तो किसी का ऑरा साइज 6 इंच का भी हो सकता है, किसी का 1 फुट का भी हो सकता है, किसी का 1.5 फुट का हो सकता है, किसी का 2 फुट का हो सकता है। तो उसी के आधार पर हम जो है किसी के लेवल का पता लगाते हैं। जैसे हमको आपसे आपके बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, अभी हमने आपको देख लिया, मैं यहीं से आपके ऑरा को चेक करूंगा। आई विल चेक योर ऑरा फ्रॉम हियर, देन आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज योर एक्चुअल लेवल। हमको आपका असली स्तर पता चल जाएगा। कई बार देखने में लोग मोटे ताजे होते हैं लेकिन उनका ऑरा बहुत छोटा सा होता है। कई लोग दुबले पतले होते हैं लेकिन उनका ऑरा बहुत बड़ा सा होता है। तो एक्चुअली जो प्राचीन काल में जब गुरुकुलों में लोग पढ़ने के लिए जाते थे, तो जो आचार्य होते थे वो ऑरा को चेक कर लेते थे। वो देखते थे अच्छा ऑरा वाला है तो ये एनर्जी को सही ढंग से पढ़ पाएगा, रिसीव कर पाएगा। और जो जिसका ऑरा कम होता था उसको उस तरह की प्रैक्टिस बता देते थे। तो पहले जो पढ़ाई होती थी वो एनर्जी बेस्ड पढ़ाई होती थी, यानी जिस लेवल का आपके एनर्जी लेवल होगा उसी लेवल की आपको नॉलेज मिलेगी। अभी तो हम सब स्कूल में चले जाते हैं और सब कोई कुछ भी हो, कोई कुछ भी, कुछ पटांग पढ़ाई लिखाई होती रहती है। लेकिन वो क्या होता है, उससे हम कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं और कुछ लोग ही उसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं। वाई? क्योंकि हम लोग एक ही प्रकार का माइंड यूज करते हैं। अब जैसे एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं उनका ऑरा 1 से 1.5 इंच का होता है। जो लेबर क्लास के लोग होते हैं उनके 2 से 2.5 इंच के ऑरा होते हैं। जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन जो होते हैं, उनका ऑरा 4 to 6 इंच का होता है फॉर इंटेलेक्चुअल पर्सन। इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लीडर, इंडस्ट्रियलिस्ट, दे हैव 4 to 6 इंचेस ऑरा साइज। उन लोगों का 4 से 6 इंच का ऑरा ही होता है। कई लोग साधक होते हैं, योगी होते हैं, जैसे आप लोग भी योग की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका ऑरा हो सकता है 6 इंच से ज्यादा हो, 9 इंच तक का हो सकता है। आप जितना उसके अष्टांग योग की सही ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है आपका ऑरा 1.5 फुट का हो जाए, हो सकता है 1.5 मीटर का भी हो जाए, 3-3 मीटर, 4-4 मीटर का होता है। अगस्त ऋषि के आश्रम में जब लोग जाते थे तो जो है वो दूर से, मीलों दूर से पहले से ही पता कर लेते थे कि लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। उनका ऑरा कितना बड़ा था, कई मील बड़ा होता। तो हम लोग अनलिमिटेड बैटरी हैं। हमारे यहाँ जो था कि आप जितना बड़ा अपना ऑरा कर लेंगे, आप उतने ज्यादा ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी और उतने ज्यादा क्षमतावान होंगे। तो जो असली जो हमारी क्षमता है, समझ है, स्तर है, वो एनर्जी के पैरामीटर से नापी जाती थी प्राचीन काल में, और आज भी नापी जाती है। तो जो इसके एक्सपर्ट होते हैं वो आउटलुक से देख करके प्रभावित नहीं होते हैं। मैं अक्सर अपनी क्लास में कहता हूं कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता नहीं है वो कई बार वही दिखता है। सो इफ वी स्कैन योर ऑरा, दैट इज योर एक्चुअल हेल्थ लेवल। तो जितना बड़ा आपका ऑरा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। अब मान लीजिए जैसे हमारी लाइफ में हम एक लाइफ से दूसरी लाइफ में जाते हैं। मान लीजिए जब हमने जन्म लिया या किसी ने भी जन्म लिया, उसका ऑरा उस वक्त 1 फीट का था, एंड व्हेन वी born our aura was around 1 फीट। और जब हमारे शरीर छूटा, व्हेन वी डाइड, देन मान लीजिए यू कैन अज्यूम देन आवर ऑरा इज वाज डबल, 2 फीट। अगर वो 2 फीट का ऑरा था तो नेक्स्ट लाइफ जब आपकी स्टार्ट होगी तो कहां से स्टार्ट होगी, 2 फीट से स्टार्ट होगी। और मान लीजिए आपका ऑरा 1 फीट का था और आपने जो है जब आपका शरीर छूटा तो आपका 6 इंच का ऑरा था, रह गया। तो नेक्स्ट लाइफ में आपका आपका जो जन्म का फिर से स्टार्ट होगा वो कितने से होगा, 6 इंच से होगा।
तो इसलिए मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये निर्धारण करने का अधिकार परमात्मा ने हमें दे रखा है। ठीक है, तो एनर्जी प्रैक्टिस के लिए ही ऋषि मुनि जो थे, जो आचार्य थे, वो अपने सबसे सीनियर डिसाइपल्स को ये एनर्जी हीलिंग सिखाते थे, सबको नहीं सिखाते थे, क्योंकि हर आदमी की कैपेसिटी ही नहीं होती थी। किसी का ऑरा छोटा सा है, अब उसको समझ में नहीं आएगा उसको वो क्या चीज है। अगर आपको ये सीखने का अवसर मिल रहा है तो इसके लिए दो लोगों को क्रेडिट जाना चाहिए, एक तो कल्पना को, दूसरा ईश्वर को, कि कहीं ना कहीं आप डिजर्व किया है, तभी आपको इस तरह की क्लास में बैठने का मौका मिल रहा है, और उसको कोऑर्डिनेट जो ऑर्गेनाइज्ड भी कल्पना ने किया है। ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग, एंड यू कैन आस्क Kiras also, she's understanding or not. Kalpana, you can Her explain. name is Vivi, sir. Yeah. So yeah, he will not understand Hindi because, right? You don't know Hindi, Vivi. So yeah, I will explain her later on. No Yes, problem. yes, yes. Yeah, You if can she has explain any question, I will English explain her and proper at the end. No too, problem. because we have to understand. Hmm. Because the lots of person is from the Yeah, Hindi somebody requested area, me so that. they are Yeah. very familiar and easy to understand in Hindi. So if we use more English language, so it may be okay. So understand what I want to say. So today we will keep session here same, and in next session we will go some more introductory class. तो कल्पना आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और थोड़ा सा आप इनको रिवाइज करवा दीजिए, और क्या बात हुई थी उसको आप उनको बता दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग जैसा चाहेंगे हम फिर बता देंगे। ठीक है, ठीक है सर. Maybe we can okay sir, if you want to like share about your more sadhana practices, so I can tell them if you have any information about that, हाँ एक मिनट like एक you're मिनट running batches and at 9 हाँ p.m. or एक something. मिनट में बता Okay. रहा हूँ। Okay, I'm explaining in 1 minute. So no problem. So basically, sir have like I think one batch he runs at 9 p.m. sadhana batch. So let me check. Yeah, so it's Cosmic Healing a group. So I will share the information about that in group. So if anybody wants, you can be part of that. I don't know the mode of language of that group, so I will ask everything in detail and will let you know. And also, if you want to learn, he is starting one more practice, level one. I got the information. So, Cosmic Healing Level 1 for Aura and Chakra Health, in which he'll be explaining detailed more details about the techniques and to cleanse the aura, to balance the chakras, and to activate for your five energy bodies. That is the he is starting on 28th of December. So it's a new course. I need to ask if it is live or not. So and then I will share that information in the group as well. Meanwhile, if you have any question regarding the session today's or yesterday's, you can ask. ठीक है, आप हिंदी में पूछ सकते हो जिसको हिंदी में डाउट है. अदरवाइज यू कैन लेट मी नो, आई विल शेयर मोर डिटेल्स. ठीक है जैसा सर. कि कल्पना जी ने बोला था कि साधना के बारे में हम लोग डेली प्रैक्टिस कराते हैं कि हर दिन के एक देवता होते हैं, और हर दिन के एक प्लेनेट पावर होती है। जैसे आज संडे है, तो आज हम लोग सूर्य देवता की प्रैक्टिस करेंगे, और जो है
ग्रह, तो उन उस ग्रह का और सूर्य देवता की पूजा करेंगे। जैसे कल सोमवार है, तो कल हम उसके भगवान शिव की साधना करेंगे। तो वो अलग अलग पैटर्न, अलग अलग दिन पे हम अलग अलग प्रकार की साधना करते हैं। एक्चुअली वो एनर्जी होती है, यानी उस एनर्जी को हम लोग रिसीव करते हैं पर डे। और किस चक्र में रिसीव करते हैं वो सब भी हम सिखाते हैं। मतलब जो है सन की साधना को कौन से चक्र में लेना है, और शिव की साधना को कौन से चक्र में लेना है, मंगल की ऊर्जा को कौन से चक्र में लेना है, हनुमान जी की ऊर्जा को कौन से चक्र में लेना है, ये सब हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जब हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो इसमें जो लोग सीखना भी चाहते हैं, इसमें हम लोग जो सिखाने वाले हैं उसमें एक तो जो सामने है व्यक्ति, उसकी हमें हीलिंग करना सीखना है। दूसरा कोई डिस्टेंस हीलिंग, कोई मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, कोई अमेरिका में है, यहीं से बैठे बैठे आप उसकी हीलिंग कर सकते हैं। डिवाइन हीलिंग आपको सीखना है। दूसरा अपने को सेल्फ की हीलिंग, ये 4 प्रकार की हीलिंग हम लोग सीखते हैं और इसे हम लोग करते हैं। दूसरा 5 बॉडीज को कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो एक 5 बॉडी एक्टिवेशन मेडिटेशन होता है, और एक ट्विन हार्ट मेडिटेशन भी हम लोग करते हैं। तो ये कई चीजें हम लोग मिलकर के इसको सीखेंगे, और हमें दूसरे के अंदर की प्रॉब्लम के रूट कॉज को हाउ वी कैन रिमूव द ऑल रूट कॉज। तो रूट कॉज को हम कैसे निकालेंगे। कल का जो हमने क्लास ली थी, जिन्होंने जो आज पहली बार जुड़े हैं वो उसको सुन लेंगे, तो आई थिंक वो दे कैन अंडरस्टैंड वेरी इजिली। तो जो है आप इस दोनों आज के वीडियो को और कल के वीडियो को देख करके आप उसको समझ लेंगे कि हम लोग इस कोर्स में क्या चीज सिखाने वाले हैं। इसके अलावा आपकी कोई क्वेश्चंस होंगी, कोई क्वेरी होगी, तो फिर हम आपको उसमें बताएंगे। लेकिन ये जो कोर्स है ये राइट ब्रेन से सीखा जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड से सीखा जाएगा, सेंसेस के द्वारा सीखा जाएगा। और इसलिए हम आपको सेंसेस का यूज करना कैसे करना किया जाता है वो सिखाएंगे। दूसरा, पहले हम आपके सेंसेस को एक्टिवेट भी करेंगे, ओके, ताकि आपके सारे सेंसेस काम करना शुरू कर दें। क्योंकि इसके टीचर अलग अलग होते हैं। स्कूल के टीचर जो है नॉलेज इंफॉर्मेशन स्किल सिखाते हैं, लेकिन जो एनर्जी के जो एक्सपर्ट टीचर होते हैं वो सेंसेस को ऑन करना सिखाते हैं, और सेंसेस के द्वारा ही कैसे हम एनर्जी को फील कर सकते हैं वो सिखाते हैं। इसलिए दोनों प्रकार के जो है टीचर अलग होते हैं। तो जो एनर्जी टीचर्स होते हैं ये लोग बहुत रेयर होते हैं, इनकी संख्या कम है। लेकिन स्कूलिंग टीचर की संख्या तो ज्यादा है, लेकिन इस एनर्जी और सेंसेस के द्वारा सिखाने वाले जो टीचर्स हैं वो कम है। लेकिन आपको एक यू आर लकी कि आप इस कोर्स में कहीं ना कहीं इंट्रोडक्टरी चीज सुन रहे हैं, तो आप इसको ज्वाइन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसको लाभ मिलेगा। सो ओवर टू कल्पना जी, यू कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। So, sir, I have a question about the sadhana group. So, I have shared the WhatsApp link for sadhana group. I will share also in my groups. So, in case course details, I will also share. In case somebody wants to connect with you in at the regular sadhana, so can they join the same link, the cosmic healing group? You all of you are most welcome, you can join, no problem. And the mode of language is Hindi of that group. आप जो उसको क्लास लेते हो वो हिंदी में। ओके, लिंक भी हम आपको उस ग्रुप में आता रहेगा ना, वो दिन लिंक आप देख सकते हैं। अच्छा, ओके पहले ठीक। ग्रुप जो ज्वाइन कर लें, उसके बाद लिंक उनको उसी में मिल जाएगा। ओके सर, ओके ठीक है, फाइन। Okay, I will share more details about it. Anybody have any questions, so you can ask live here. Otherwise, I am going to share. The- Okay, yep, you can please ask. How to scan your aura? So, sir, she is asking about how to scan the aura. If you can answer her doubt. क्या चीज पूछ रही है? So, Vivi is asking that how to scan the aura. हाँ, yes, you have to learn. In course you will learn how to scan the aura. So So अभी basically, सबसे पहले yeah. So that is like big concept which we can't cover in these 2 days class. So it was an introduction about everything. So if you have to like go in more details, it will take
hours to learn all these things, right? So that's why we have I have shared the information about the course. I'll share in the group as well, so you can contact personally to learn all of that. Okay. If you want to know about your aura, so you have to send your photographs, latest photograph, your Yeah. name and your age in Kalpana WhatsApp number or my I will WhatsApp share number. yours, sir. No problem. So I can tell you about your aura. Okay. Thank you. Okay. And when you learn how to scan aura and how you diagnose what is the problem in 5 bodies, then you have to come in the course level 1. Okay, Okay. everyone. So yeah, if anybody having like interest about you, if you want yours aura to be scanned, so I will be sharing sir's personal number, okay, or her admin's number, because sir is traveling, he'll be busy. So better I will share the admin number, so you can share your details, right, sir? Is it right? I will share Smriti ma'am's number so that they can share the details, and in your free time you can help them. Okay, so you can contact like that. हाँ, उनको भी कर सकते हैं, मुझे भी कर सकते हैं, अगर अभी शुरुआत के लिए, अच्छा, ठीक है। ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ओके, ठीक है, मैं आपका ही शेयर कर दूंगी। सो क्लियर हुआ सबको? अगर आपको थोड़ा ओरा के बारे में, लाइक यू गॉट इंटरेस्ट अबाउट द ओरा एंड यू वांट टू स्कैन, सो मैं आपको सर का नंबर दे देती हूँ। यू पर्सनली शेयर योर पिक्चर, और सर क्या भेजना है पिक्चर के साथ? नेम और एज। Name, age, and your picture. So he can at least tell what are the disease, whatever you want to know. And then if you are more interested in learning, so sir is आप starting. लोगों को मुझे कुछ नहीं बताना है, मैं ही आपको बताऊंगा Yeah, कि ठीक क्या है। स्थिति है। ओके। ठीक है सर, फिर मैं इसके लिए आपका नंबर दे देती हूँ, और मैं अपना भी भेज दूंगी, मेरा और अभी अभी थोड़ा ढीला चल रहा है, सो यू कैन स्कैन माइन ऑल्सो। ठीक है। एंड या, एनी क्वेश्चन एवरीवन? किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? पूछो। अभी सर हैं, फिर सर हाथ नहीं आते जल्दी जल्दी। वी नीड टू लाइक गिव इज टाइम। वो टाइम उन्होंने दिया, इट्स लाइक वेरी, वी आर आई एम पर्सनली वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने इस हमारे 2 hours दिए फॉर दैट। तो अभी कोई क्वेश्चन है तो आप क्लास में पूछ लो, अदरवाइज आई शेयर इज नंबर एज वेल। नो क्वेश्चंस? सो विल एंड अप द सेशन, राइट? ठीक है, ओके। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गाइडेंस, और आई विल शेयर मोर डिटेल्स इन द ग्रुप। ओके एवरीवन, टेक केयर। क्लासेस में मिलते हैं। सी यू टुमारो। बाय। And Vivi, you can personally message me if you have any doubt about the class. Meanwhile, I will share more details. Okay? हाँ जी मैम, ऋषि, मैडम बात करनी है आपसे, कर बोलो लूँ फोन बोलो। आपको? हाँ हाँ हाँ, फोन फोन पे कर लूँ? अच्छा फोन, हाँ फोन कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है मैम, ओके जी, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।